What is the formula of cos C minus cos D? It is Sir, minus. minus 2 sin a plus b by 2, a minus b sin a minus b by 2. Yes. Right. Now in place of C, we have this one beta. And in place of D, we have this one. So C is equal to 3 pi by 4 plus x and D is equal to 3 pi by 4 minus x. Once we required addition and subtraction. So first if we add these two, if we add these two, कितना आएगा बेटा देखो इसे 6 pi by 4. This is the value of C plus D because x cancel हो जाएगा. 3 pi by 4 plus 3 by 4 is 6 pi by 4 and in this simplest form it is 3 pi by 2. Now we required C plus D by 2. So C plus D by 2 is equal to 3 pi by 4. I hope this is clear beta all of you. The value of C plus D by 2 is what? 3 pi by 4. Now what is C minus D? If we subtract these two terms beta, 3 pi by 4, 3 pi by 4 cancelled. X plus x is 2x. And if we divide by 2, it is, the value is x only. So in LHS, we mentioned if it is a subjective paper beta, first mention this formula. This is required and you can get these values directly and write in place of this LHS beta. Minus 2 sine, value of this is 3 pi by 4 into value of this is x. So 3 pi by 4 value is required beta. And this we have done in the previous class how to find out this value. 3 pi by 4. We can write this as pi minus pi by 4. 3 pi by 4 can be resolved in these two parts beta pi minus pi by 4. Now sine pi minus theta lies in which quadrant beta? Anyone? What is the value of this? Second quadrant. Second quadrant. And where sine is positive or negative beta? पॉजिटिव सर तो साइन पाई बाय 4 ही होगा. ये sin pi by 4 ही होगा and value of sin pi by 4 is 1 by root 2. तो ये भी हमने शो कर दिया इस क्वेश्चन के लिए. If it is a subjective, so this we have showed here. Now minus 2 1 by root 2 into sin x. Now root 2 से इसको कैंसिल करोगे तो this will be equal to minus root 2 sin x, which is your RHS. Right बेटा? अब मुझे बताओ ये क्लियर है सबको या नहीं है बताओ भाई. Is this clear to all of you beta? Please reply. Okay. Now next question beta. Now next question is 12th question. So I have given you already formula for this. Direct formula. Question number 12. It is sine square 6x minus sine square 4x is equal to sine 2x sine 10x. Sine 2x into sine 10x. So whichever formula you are applying, write that formula beta. If it is a subjective, you will get some marks for writing the formula. So sine square a minus sine square b, I have given a formula for this, which is known as factor formula. And what was that beta? Sine of a plus b into sine of a minus b. Right? So now apply in LHS, which is your sine square 6x minus sine square 4x. So apply this formula. This is my A, this is my B. So first I need the addition of these two. So which is sine 6 plus 4 is 10x into A minus B means 6 minus 4. It is sine 2x, which is your RHS. So using this formula we have done in a single line. In a single step we have done. Alternate method is what? If you have not remember this formula better, alternate method.
a bit lengthy, but you can solve it. LHS is sine square 6x minus sine square 4x. First, we overall apply a square minus b square factor, which is a minus b and a plus b. So, which is sine x minus sine 4x into sine 6x plus sine 4x. Now apply C and D formula. C and D formula. So C sine C minus sine D formula, which is 2 cos C plus D by 2 sine C minus D by 2. Next formula is sine C plus sine D. This is sine C plus sine D. And this is 2 sine C plus D by 2 cos C minus D by 2. So in these two brackets, we'll apply C and D formula. So apply this formula, minus formula in first bracket and plus formula in second bracket. So इसको solve करते हैं. This is twice cos C plus D by 2, 6 plus 4 is 10 by 2 is 5x. C minus D by 2, 6 minus 4 is 2x. Divide by 2 is only x. So it is sine x. This is the value of first bracket using the C and D formula into next we apply C plus D by 2. This is twice of sine 5x into cos of x. Now combine the same angle terms better. Now write 2 sine 5x cos 5x. Write in a bracket 2 cos 5x and sine 5x को मैंने एक जगह combine कर दिया. Next is 2 sin x cos x. 1, 2 is this. So 2 sin x cos x. Now the next formula which we are using here beta, 2 sin a cos a is equal to sin 2a. This is the next formula we are using in this question, right? So see 2 sin a cos a. So this become sin 5 का डबल हो गया. देखो एंगल डबल हो रहा है यहाँ पे. This is known as double angle formula. तो sin tan x into यहाँ पे एंगल x है तो x का डबल किया. This become sin 2x, which is your RHS. So in this we have used three formulas: sin c minus sin d, sin c plus sin d, and 2 sin a cos a. The three formula we have used, and here only we have taken the one formula, factor formula. ठीक है बेटा? So now it depend on you. Can you show me the previous ones? Which one बेटा? ये वाला? The previous question. Previous question, okay. Previous one is this. Sir, Ayush present. Ayush Sharma. Done beta? Thank you, sir. Okay. But I hope this question is clear to all of you, both the methods. देखो अगर MCQ question आता है तो I suggest you to solve this way बेटा. And अगर subjective भी आता है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो. तभी मैंने आपको ये फॉर्मूला दी है. अदरवाइज NCERT में नहीं है ये फॉर्मूला, बट आपके जेई में आपको काम आएगा, बिकॉज वहां पे आपको सीधे MCQ सॉल्व करने, और रिसेंट में भी आपके पास ये MCQ फॉर्मेट में भी है. और नॉर्मली ये क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर का ही आएगा. अगर सब्जेक्टिव भी है तो 1 या 2 नंबर में आप जितना कोशिश हो छोटे वाले तरीके से सॉल्व करो. ठीक है? अगर नहीं आ रहा तो ये मेथड आपको अप्लाई करना ही है, चाहे 1 नंबर का है चाहे 2 नंबर का है. ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th. सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, which is cos square 2x minus cos square 6x. So इसमें this is we have to prove
इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। सो एक मेथड तो आपको पता ही है, ये तो नॉर्मल मेथड हो ही गया, इस वाले मेथड से तो इजीली आप कर ही लोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अदरवाइज फैक्टर फॉर्मूला की कैटेगरी में मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला भी दिया था, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग इन दिस फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में, cos square b is first minus cos square a, right? And formula is sine of a plus b into sine of a minus b. So the first angle है वो b है and second angle is your a. So apply this formula now. Sine a is 6x plus b is 2x. Sine a is 6x and b is 2x. So now it is sine 8x into sine 4x which is your RHS. ठीक है बेटा? Any doubt बेटा? Question number 13. Is this clear to all of you बेटा? Reply करो बेटा, तभी मुझे पता चलेगा कुछ बच्चे मेरी बात सुन भी रहे हैं. Now question सर इसमें तो number, हम कोई भी लगा सकते हैं सर, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a की जगह cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b भी सही था, क्योंकि वो लगाओ, मल्टीप्लिकेशन में है ना हाँ लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब कहने का मतलब है जब हम टेक्निकली इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं तो फर्स्ट टर्म इज बी एंड सेकंड टर्म इज ए, ये मैं कह रहा हूँ सेकंड एंगल. ठीक है? नाउ मार्क 14th एज इंपॉर्टेंट बेटा, इंपॉर्टेंट. देखो कैसे है ये. 14th क्वेश्चन इज sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x is equal to, we need to prove it is equal to 4 cos square x into sin 4x. ठीक है? 4 cos square x sin 4x. Whose message is this? Siddharth Jain. Siddharth, you have joined just now. Reply बेटा. लेट कैसे हो गए बेटा? ज्वाइन नहीं हो रहा था. आवाज से ऐसे लग रहा है सो के उठा बेटा तू तो अभी. नहीं सर, वो गले में वो है सर. चलो देखो बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन में. फर्स्ट टर्म जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ वो है पेयरिंग. पेयरिंग बेटा, व्हाट इज पेयरिंग बेटा? पेयरिंग कैसे करनी है देखो. पेयरिंग इस तरीके से करनी है कि आपके पास जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए. पहली बात तो जैसे इन दोनों में इसका कोफिशिएंट सेम है तो ऑब्वियसली ये पेयरिंग बन रही है. लेकिन सपोज करो इसके आगे भी 1 ही होता है, तो पेयरिंग कैसे करना है वो देखना बेटा एक बार. कैसे करना है देखो. अगर 2x प्लस 4x करता हूँ, बेसिकली जब एडिशन में है तो वी हैव टू अप्लाई सी एंड डी फॉर्मूला, एंड इन सी एंड डी फॉर्मूला वी हैव c plus d by 2 and c minus d by 2. These two angles we have in this formula बेटा. तो आप कोई भी एक चीज पिक कर लो, इधर c plus d by 2 और c minus d by 2. सपोज मैंने प्लस लिया तो 2 plus 4 करता हूँ तो दिस बिकम 6x, और उसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो 3 आता है, और 3 एंगल वाला मेरे पास आरएचएस में कोई भी नहीं है. पहली चीज. नेक्स्ट लेते हैं सेकंड एंड थर्ड. 4x plus 6x दोनों को ऐड करता हूँ, 5x आ रहा है. 5x को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी 10x आता है, 10 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5x आता है, तो वो नहीं है यहाँ पे देखो. तो इट मींस फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड का पेयरिंग नहीं हो सकती. अब लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड वन. तो 2x plus 6x is 8x and 8x is divided by 2 is giving 4x. So it means if we paired first and third term, तो हमारे पास क्वेश्चन के आरएचएस तक पहुंचने के ज्यादा चांसेस हैं और जल्दी चांसेस हैं बेटा. ठीक है ना? सो फर्स्ट थिंग इज पेयरिंग बेटा. तो पेयरिंग करो. विल टेक 2 sin 4x प्लस एंड राइट द पेयर्ड टर्म इन ब्रैकेट. आपने क्या किया, थर्ड और फर्स्ट को आपने एक ब्रैकेट में लिख लिया, आपने इसमें पेयरिंग कर दी. नाउ अप्लाई सी एंड डी फॉर्मूला. सी एंड डी फॉर्मूला बेटा, एंड विच इज दैट? sin c plus sin d.
फॉर्मूला इज 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. क्लियर बेटा? अब इसको अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे इट इज ट्वाइस साइन 4x प्लस अप्लाई फॉर्मूला बेटा यार 2 sin c plus d 6 plus 2x 8x by 2 is 4x into cos 6 minus 2x is 4x 4x divided by 2 is 2x. Now in the first and second term we have common 2 sin 4x common. Now 1 plus cos 2x and I have given you a formula of this with hash mark. आप चेक करो, मैंने ये वाला फॉर्मूला cos दिया square है x. cos, yes 2 cos square x बेटा 2 cos square Yes, x sir. फॉर्मूला. ये आपका पूरे 12th इवन इन बीएससी एमएससी जब भी आप पढ़ोगे बीटेक करोगे कुछ भी करोगे इस फॉर्म में ये फॉर्मूला आपको बहुत बार मिलेगा बेटा. So remember this formula 1 plus cos 2a is 2 cos square a and 1 minus cos 2a is 2 sin square a. This is the formula. ये आपको बार बार यूज करना पड़ेगा. अगर यहाँ 2a है तो इसका हाफ a हो गया, अगर यहाँ 2a है तो इसका हाफ a हो गया. So formula अप्लाई किया हमने 2 sin 4x into value of this is 2 cos square x. Now 2 into 2 is 4. Then it is cos square x into sin 4x, which is your RHS. तो important thing is what? एक तो पेयरिंग है बेटा, और एक इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्म में याद रखो. अदरवाइज कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, we remember the formula of cos 2a, that is 2 cos square x minus 1. Then वो 1 और 1 को कैंसिल करते हैं, तो आपने एक स्टेप ज्यादा ले लिया बेटा. तो अब याद देखो, आप पहले ये फॉर्मूला लिखोगे, देन अगले स्टेप में 2 cos square x आएगा. हमने इसको डायरेक्ट लिखा बेटा. ठीक है? इज दिस क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पेयरिंग देखो दोबारा, डी मैंने ये सी हो गया, ये डी हो गया. आप चाहो तो 2x को पहले लिख लो, साइन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले जाने चाहिए आपको. बस पेयरिंग का बेस मैंने आपको बताया, जब भी हम पेयरिंग यूज करते हैं तो इसका मतलब लगभग 100% वी आर गोइंग टू अप्लाई सी एंड डी फॉर्मूला बेटा. पेयरिंग उसी समय काम आती है बेटा. तो मैंने आपको पेयरिंग का तरीका बताया. मेरे पास आरएचएस में एक 1x एंगल है और एक 4x एंगल है. ठीक है, आप चेक करो, देखो सी एंड डी फॉर्मूले में एक बार ऐड करना पड़ता है बाई 2, सब्ट्रैक्शन बाई 2. तो अगर मैं 2 को c और 4x को d लेता हूं तो 2 plus 4x is 6x divided by 2 is giving 3x. 3x एंगल का मेरे पास आरएचएस में कोई भी नहीं है. नेक्स्ट आ जाते हैं, 4x को मैं 6x के साथ ऐड करता हूं तो दिस इज गिविंग 10x एंड 10x को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5x आता है. एंगल 5x वाला मेरे पास आरएचएस में कोई भी नहीं. इट मींस इन दोनों की पेयरिंग नहीं करूंगा, इन दोनों की पेयरिंग नहीं करूंगा. नेक्स्ट आता है फर्स्ट एंड थर्ड पेयरिंग. इन तीन टर्म में पेयरिंग के तीन ही तरीके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो थर्ड पेयरिंग मेरे काम आ रही है. तो 2x plus 6x is 8x divided by 2 is giving 4x. तो 4x वाली टर्म मेरे पास फर्स्ट एंड थर्ड को पेयर बनाने में आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूं. अगर सपोज करो आपको पेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप अपने हिसाब से सॉल्व करते जाओ. सपोज करो मैंने इसे 4 लाइन में सॉल्व किया, आपकी 10 लगेंगी, 12 लगेंगी, 15 लगेंगी, लेकिन आप सॉल्व कर लोगे, आंसर उससे भी आएगा. बस ये सजेशन मैंने आपको इसलिए दिया है कि आपका कम टाइम में और जल्दी सॉल्व हो जाएगा. और जितने फॉर्मूलाज आपके दिमाग में रहने चाहिए उन्हीं फॉर्मूला को यूज करके आप कर लो. अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस हैं. आप 2 sin 4x में sin 4x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लो. कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, मतलब सबके पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं. अगर आपके पास ये वर्ड नहीं है पेयरिंग, तो पेयरिंग जस्ट अ टूल which help us to solve these kind of problem in a short time बेटा, very less time बेटा. बस ये और कुछ नहीं. तो आपको पेयरिंग कई क्वेश्चनों में हेल्प करेगा. क्लियर है बेटा? बोलो, आपका डाउट क्लियर है? Yes, sir.
चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15। इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, we have to prove cot 4x in bracket sin 5x plus sin 3x is equal to cot x sin 5x minus sin 3x। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, इधर यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम LHS टू RHS और RHS टू LHS। तो मैंने लिया नॉर्मल तरीके से LHS, आई टेक दिस cot 4x into sin 5x plus sin 3x। now which formula is applicable here beta, which category? Sin A Tell plus sin B. tell me by name beta, which category I have given you this formula? C plus D. C and D formula, right? So apply sin C plus sin D. Formula is 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. C minus D by 2. Now apply, this is C and this is D. So 5 plus 3 is 8. So we have cot 4x. 2 sin 8x by 2 is 4x into 5 minus 3 is 2. 2 by 2 is 1. So this is cos x. अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है बेटा, अब देखना यहाँ पे जो बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, LHS को सॉल्व कर लिया ये, अब वो RHS को सॉल्व करेंगे और दोनों को एक जगह पे लाके दोनों को इक्वल दिखा देंगे, which is wrong when it is a subjective question, which is wrong मतलब wrong in the sense till here it is okay. If you are starting solving RHS now, it means आप कहीं ना कहीं बस कोशिश करोगे क्वेश्चन कहीं पे मैच कर जाए और प्रूव हो गया। बट टेक्निकली क्या होता है, अगर आप प्रूव कर रहे हो तो इधर यू गो फ्रॉम LHS टू RHS और फ्रॉम प्रूव इट फ्रॉम RHS टू LHS। दिस थिंग यू हैव टू फॉलो। ठीक है, तो अब आपको कुछ इस तरीके से दिमाग लगाना है कि इसके बाद आपका ये आंसर आ, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। नाउ राइट cot 4x as cos 4x upon sin 4x into 2 sin 4x cos x। क्लियर बेटा? नाउ sin 4x and sin 4x cancelled, so what we have now 2 cos 4x into cos x। अब ध्यान से देखो, मुझे cot x चाहिए, तो cot x के लिए मुझे यहाँ पे sin x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So now make it cot x. So this is cot x, and in bracket write 2 cos 4x into sin x. Now apply product formula 2 cos A sin B. Anyone who can give me the formula? 2 cos A sin B. हाँ जी सर, कोई है? Formula is A plus B minus sin A minus B. Product formula category beta. This we have to apply here. Now this is A, Sir, this is B. हाँ जी बेटा बोलिए। सिर्फ फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम cot x को cos x by sin x करके sin x cos x को कैंसिल कर दे तब भी हमारा आंसर सीधा ही आ जाएगा। कहाँ है बताओ भाई, मैंने साइन से कैंसिल कर दिया, यस सर। फिर मुझे तो ये लेके आना ना बेटा। नो सर, हमारे जो RHS में हमारा आ गया cos 4x और cos x, अगर हम इसमें भी cot x को cos x by sin x कर देंगे तो sin x और cos sin x कैंसिल, फिर cos x और cos 4x आ जाएगा। तो RHS आप equals तो to वही, आप तो यही कर रहे हो ना कि आप इसको भी सॉल्व कर रहे हो, इसको भी सॉल्व कर रहे हो, यही कर रहे हो ना। आपने यहाँ तक यस इसको सर। सॉल्व किया, अब आप इसको सॉल्व कर रहे हो,
दोनों को मैच कर दोगे, आपका आंसर आ गया, विच इज रॉन्ग। नो यू विल नो नॉट सर, मैं गेट वो फुल। नहीं कह रहा। फिर आप बताओ क्या, इस स्टेप के बाद बताओ आप क्या करोगे, यही करोगे आप ये वाला काम? यस सर। उसके बाद क्या करोगे बोलो? सर मेरे पास अब बचा जैसे है आरएचएस में आपका आंसर आ गया 2 cos 4x और इनटू cos cos x। x। हाँ, तो ये सर आ गया एलएचएस मेरे में भी पास। तो ये आ जाएगा, cot x को हम लिख सकते हैं cos x बाय sin तो x, तो sin x से sin x LH कैंसिल, फिर तो LHS को तो सॉल्व कर रहा हूँ बेटा मैं, ये LHS ही तो है भाई। प्रूविंग क्या होती है? LHS से RHS लेके आना है मुझे, प्रूविंग ये होती है। तो मुझे जो भी सिंप्लीफिकेशन करनी है वो LHS में करनी है। तो अब मैं 2 cos 4x cos x लाके यहाँ रुक गया हूं मैं, अब मैं क्या करूं? मुझे तो आंसर ये लेके आना है। तो इसके बाद क्या करोगे आप बताओ? ये sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने नहीं किया, इसके अलावा अब आप क्या करोगे जिससे ये आंसर आ जाए, बोलो? मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप तक ढंग से नहीं पहुंच पा रहा। बच्चे क्या करते हैं बेटा, 2 cos 4x cos x आ गया, वो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब उनके आगे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। अब वो क्या करते हैं, सी एंड डी फॉर्मूला यहाँ लगाया, कॉट को कॉस बाई साइन लिखा, सिंप्लीफाई करा, वो ये वैल्यू आएगी 2 cos 4x cos x, यही वैल्यू आएगी यहाँ पे। हेंस प्रूव्ड, ये हो गया। यस बट सर। इफ इट इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा, वहां पे अगर मान लिया आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं, सपोज करो आप उस कैंडिडेट में दिख गया हमें चेक करते हुए कि आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं, और अच्छे बच्चे दिख रहे हो जिसके 90% से या 80% से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो कोई भी टीचर आपको फुल मार्क्स नहीं देगा, बिकॉज आपने एक बहुत ही क्या कहते हैं उसे, एक क्या कहते हैं, मतलब टेक्निकल ग्राउंड पे आपने इसे क्लियर नहीं किया। प्रूविंग क्वेश्चन जब आपने 10th में या 9th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो आपको बोला होगा या तो एलएचएस से आरएचएस पे पहुंचो या आरएचएस से एलएचएस पहुंचो। इस क्वेश्चन की यूएसपी ही यही है कि मैं इस क्वेश्चन, में तो हमें करा देते थे ऐसे, दोनों साइड सॉल्व क्या कर दो करा, तो आ जाएगा। नहीं बेटा वो अलाउड नहीं होता, एटलीस्ट इन सीबीएसई लेवल इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि सीबीएसई में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरे पास 99.9% क्वेश्चंस एलएचएस से आरएचएस आ जाते हैं। ओनली 1% क्वेश्चंस आर देयर जिसमें मुझे एलएचएस को भी सॉल्व करना है, वो आरएचएस को भी सॉल्व करना है, और वो सीबीएसई लेवल में नहीं है क्वेश्चन। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी लेवल के अकॉर्डिंग, वी हैव टू प्रूव फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस। अब मैं आपको वही बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे टीचर, लेकिन अगर आपके 100% मार्क्स आ रहे होंगे या मोर देन 90% मार्क्स आ रहे होंगे, तो इस सिचुएशन में अगर ये क्वेश्चन 4 का होता है तो कोई टीचर 3 देगा, मेरे जैसा टीचर 2 नंबर दे देगा, कोई 3.5 दे देगा नंबर। लेकिन अगर इसको 3.5 नंबर देने के बाद आपके 99.5 बन रहे हैं, तब वो फिर इसको 3 कर देगा। रीजन, आपका जो सोल्यूशन है ये परफेक्ट नहीं है एज पर सीबीएसई गाइडलाइन, बस। और 100 का मतलब होता है कि आपकी कॉपी परफेक्ट है, इसीलिए हम आपको 100 दे रहे हैं। तो मेरे मन में अगर 1% भी ये है कि दिस इज नॉट द प्रॉपर वे एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन, सो इट मींस मैं आपको 4 नंबर पूरे नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन यही किसी बच्चे के जिसके 30 नंबर आ रहे हैं तो मैं 4 दे दूंगा भाई। अब आपको पता है मैं क्यों दे रहा हूं उसको 4 नंबर, 3 भी दे दूंगा तब भी पास हो रहा है, लेकिन मैंने 4 दे दिए, ठीक है चलो भाई। ये तो जैसे तैसे करके कोशिश ही कर रहा है मैथ्स को करने की, लेकिन आप ऑलरेडी ऐसे नहीं हो कि आपको कोई दान में नंबर दे, आप खुद अपने दम पे नंबर लेके आते हो, तो आपको वो गलतियां करनी ही नहीं है जिससे कि कोई टीचर आपके नंबर काटे। मेरी बात समझ रहे हो? जो ये चीज मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, आपको 12th में कई क्वेश्चनों में ही नजर आएगा, और उसमें कई बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो जिसकी वजह से जो 100 वाला बच्चा होता है वो भी 99 98 पे रह जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है बेटा, जिससे कि आपके नंबर ना कटे सीधे। क्योंकि देखो, मान लिया मैंने आपको बोल दिया कि हाँ बेटा कर लो, लेकिन वहां पे अगर 100 टीचरों में से अगर 10 टीचर भी ऐसे रहे जिसकी दिमाग में रहा कि ये सीबीएसई में अलाउड नहीं है, तो वो आपके नंबर काटेगा ही काटेगा, और नुकसान आपका है। मैं सिर्फ आपको ही सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। और आपके स्कूल में मैं टीचर हूँ, मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा। मैंने आपको बता दिया, इसके बाद अगर आपने इसको सॉल्व किया है और दोनों को मैच कर दिया, मैं फुल मार्क्स नहीं दूंगा, ना मैं देता बेटा, इवन नॉट इन बोर्ड बेटा, मैं नंबर नहीं देता। मेरे पास अपना जस्टिफिकेशन है उसका, ठीक है बेटा? बोलो आप, बाकी आपकी ओके सर। मर्जी है, फोर्स नहीं कर रहा बेटा मैं आपको।
क्योंकि कहीं पे सॉल्व करना है। मान लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कुछ इससे रिलेट करके कि भाई क्या आएगा यहाँ पे, तो आप कुछ भी करो, ऑब्जेक्टिव का कोई अप्रोच नहीं होती है। आपने तुक्का मार के बी ऑप्शन पे भी टिक कर दिया, यू विल गेट फुल मार्क। वहां पे कोई आपका आधा नंबर नहीं काटेगा। अगर रॉन्ग है तो आपके पूरे नंबर कट गए, सही है तो पूरे नंबर मिल गए। जब सब्जेक्टिव होता है तो मैं आपने ये फॉर्मूला नहीं लिखा, आधा नंबर डिडक्ट कर दूंगा। ये सब्जेक्टिव की फर्स्ट स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है ना। और आपने यहीं पे छोड़ के इसको सॉल्व कर दिया तो मैं उसके नंबर काट दूंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप आगे चले बेटा। यस और कोई डाउट आ रही तो बताओ बेटा। सर तो मतलब जहाँ पे आपने हैश लगाया है इस वाली इक्वेशन पे, हमें हाँ जी बेटा, इससे हमें प्रॉपर्ली वही आरएचएस वाली बनानी पड़ेगी, तभी आप मार्क्स। बनानी पड़ेगी बेटा। इसमें मेरे को आपको एक और चीज बता रहा हूँ। आप मैथमेटिक्स में एक चीज याद रखना, मैं उस टर्म को बोलता हूँ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट करो। मैनिपुलेट मतलब मैं कुछ प्लस और कुछ माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं अपने आंसर पे पहुंचा। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि कुछ प्लस माइनस करने से, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से मेरा कोई फॉर्मूला बनना है और इस क्वेश्चन को एक प्रोसेस और एक स्टेप मिल रहा है सॉल्व करने का, उस टीचर को, उस बच्चे को, सॉरी, मैथमेटिक्स के टीचर अप्रिशिएट करते हैं कि इस बच्चे ने अपना दिमाग लगाया, लॉजिक लगाए हैं, जिससे कि बच्चा यहाँ पे पहुंच सके। अब मान लिया 2 cos 4x cos x के बाद, तो बच्चा तो ट्रेडिशनली कर रहा है ना बेटा, कि टीचर ने बताया था कि अगर यहाँ अटक जाओ तो इसको सॉल्व करना शुरू कर दो और आपका LHS RHS दोनों मैच हो जाएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये बेटा अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो ये मेरी वीकनेस है कि मैं भी आपको अपना जो लॉजिक लगा सकता हूँ कहीं पे, तो वो मैं आप तक पहुंचा भी नहीं रहा, और ना आपको मोटिवेट कर रहा कि कहीं पे लॉजिक भी अप्लाई करो, ठीक है ना। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट योर लॉजिकल रीजनिंग बेटा। आपका IQ बहुत बढ़ा देता है मैथमेटिक्स करना, और अगर आप मैथमेटिक्स नहीं कर रहे तो आपके IQ और जो मैथ्स नहीं कर रहा उसके IQ में आप अपने आप चेक कर लेना। यू हैव मैनी टूल्स टू चेक द IQ ऑफ अ कैंडिडेट। मेरे ख्याल से गूगल पे बहुत सारे तरीके हैं अपना IQ चेक करने के, ठीक है ना बेटा। तो मेरा सजेशन है आपका, बाकी आपकी मर्जी है, मेरा सजेशन है अगर पॉसिबल है और आपको कुछ नहीं आ रहा तो भगवान का नाम लेके जो तरीका आपने अप्लाई किया कर दो। बोर्ड में बस ये है कि किस टीचर के पास आपकी कॉपी गई है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पहला स्टेप एक एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, उसके ऊपर एक हेड वो होता है, असिस्टेंट AHE, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, वो इसकी कॉपी चेक करता है। अगर उसको वो कमी दिख गई और वो ऐसा टीचर हुआ जो टिपिकली आपकी CBSE गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो वो आपके नंबर काट देगा। इसने तो पूरे दे दिए 100 में से 100, लेकिन ये काट देगा। और मान लिया इससे मिस हो गया तो फिर एक HE होता है बेटा, उसके पास जाएगी या फिर वो काट देगा। यानी कि जब किसी के 100 आते हैं तो ये 3 तो मस्ट हैं, ये कॉपी चेक करेंगे ही करेंगे। अदरवाइज उस सेंटर पे अगर उस रूम में 20 टीचर है तो ये 100 वाली कॉपी एक सेंटर टेबल होती है उस पर रख देते हैं। ये टीचर कहेगा कि भाई मैंने तो इसको 100 दे दिए और मेरे हिसाब से पूरा परफेक्ट है। अब आप में से कोई भी आ जाओ यहाँ पे, तो एक नहीं आता बेटा, 4-5 टीचर आ जाते हैं। वो बताएगा फिर कि यार ये गलती, उस 100 के मैंने 90 होते तक देखे बेटा। जिस टीचर को इस टीचर ने, जिस बच्चे को इस टीचर ने 100 दिए हैं, उस बच्चे के मैंने 90 होते तक देखे हैं। इतनी गलतियां निकल जाती हैं जब सेंटर टेबल पे आती है तो कॉपी। फिर उसके बाद जब 90 हो गया तो 6-7 टीचरों ने पहले चेक कर दिया, ये अपने साइन कर देता है, फिर ये साइन कर देता है, हो गया काम खत्म। सर मतलब वो पहले क्या क्वेश्चन पेपर ढंग से चेक नहीं करते या फिर ऐसे ही मार्क्स? नहीं नहीं बेटा, करते हैं। देखो जब ये चेक कर रहा है तो ये एक साथ बहुत सारी कॉपियां चेक कर रहा है बेटा, तो एक सैचुरेशन आता है, मैनुअल वर्क करते हैं। मैं बार बार यही चीजें चेक कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग से कई बार कुछ चीजें मिस हो जाती है, तो मैं उसमें 100 नंबर दे दिए पूरे। तो गलती नहीं है कि ये टीचर गलत कर गया, ये आपका एक टेक्निकल कह सकते हो कि जब मैनुअल वर्क करते हैं तो इस तरीके के फ्लॉज आ जाते हैं। तभी तो इनके ऊपर AHE और HE बिठा रखा है बेटा। भाई देखो अगर एक लेवल पे मैंने कोई गलती की तो मेरे ऊपर एक ऑब्जर्वर है। सपोज करो स्कूल का ले लेते हैं, टीचर के ऊपर वाइस प्रिंसिपल है, देन प्रिंसिपल है। टीचर गलती करेगा तो वाइस प्रिंसिपल करेक्ट करेंगे उसे, वाइस प्रिंसिपल गलती करेगी तो प्रिंसिपल करेक्ट करेंगे बेटा उनको, ठीक है ना। तो एक तरीका होता है ये, आ रहा समझ में? तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन कई बार एक जैसा लगातार काम करने से, अब जैसे मेरे साथ भी होता है,
सैचुरेशन इज व्हाट, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, अब शाम को जो लास्ट क्लास है मैं उसमें यही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे इसके आगे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे आता नहीं क्वेश्चन, या मैं सैचुरेट हो गया। या आपके साथ भी होगा, आप उस टाइप के क्वेश्चन 50 बार कर चुके हो, लेकिन एक जरूरी टाइम पे जब उसकी जरूरत है तो वो आपसे उस समय सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो इस तरह की सिचुएशन आती है, दैट इज नोन एज सैचुरेशन। उस सैचुरेशन में कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, ऐसा नहीं कि टीचर गलत कर रहा है। ठीक है बेटा, तो मेरा सजेशन है, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा आपको कि भाई इसके बाद आप इसको करो, क्योंकि देखो सबका तरीका है, पहले आपको टीचरों ने कुछ गाइड किया हुआ है, या आप कहीं ट्यूशन पे पढ़ रहे हो, ट्यूटर है तो ट्यूटर को नहीं पता सीबीएसई में चेकिंग कैसे होती है, और कोई सीबीएसई का टीचर कर रहा है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हो सकता है वो अपने हिसाब से बता रहे हो, लेकिन मैंने ये फेस किया अपने बिगिनिंग में, जब मैं टीचर बना था स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट टाइम सीबीएसई में चेकिंग पे गया था, तो मेरे पास फर्स्ट टाइम पे ये अप्रोच आई, तो एक सीनियर टीचर ने मुझे गाइड किया था, ये वो चीज मैं आप तक कन्वे कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, those who want to get the full marks in this type of problem, मेरा सजेशन फॉलो करना। बाकी 10% चांस है कि कोई टीचर आपके नंबर काटेगा, अब आपकी किस्मत ही खराब है तो 10% वाली टीचर के पास कॉपी गई तो आपके नंबर कट सकते हैं, और आपके पास, क्योंकि आपके स्कूल में मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आपका 100% चांस है इस सिचुएशन में मैं आपके नंबर काटूं, बस ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, बोलो। ओके सर। मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया नहीं कर दिया, ये बताओ पहले। यस सर। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा, एक पेज ऐसा ही हो गया है, अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से ले रहा हूँ। मेरा LHS इक्वेशन से एक बार फिर से मैं दोबारा शुरू से ले रहा हूँ बेटा। LHS, माई LHS इज कॉट, और पूरा सीबीएसई का प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ बेटा, जो मैं दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन, उसमें से कोई भी स्टेप आपने स्किप किया आपके नंबर कटेंगे। फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, विच फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग, दैट वी हैव टू राइट sin c plus sin d, and the formula is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, right? now अब आपके इस LHS में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, which is cot 4x in bracket। अब कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं 2 sin 5 plus 3 by 2, 5 minus 3 by 2। नहीं बेटा, जब मैंने फॉर्मूला लगा दिया तो अब ओरल कैलकुलेशन करो, 5 plus 3 is 8 by 2 is 4, तो write 2 sin 4x and it is cos x। now write this formula of this beta, it is cos 4x upon sin 4x into 2 sin 4x cos x। sin 4x cancel, now we have 2 cos 4x into cos x। अब हम यहाँ अटक जाते हैं कि भाई इसके आगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे आएगा, तो मेरे दिमाग में मुझे ये कॉट दिख गया बेटा, देखो, और इस कॉट को कैसे बनाते हैं, साइन से डिवाइड करने पे कॉस बनता है, ये कॉट बनता है, तो मेरे पास कॉस ऑलरेडी है, मैंने इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बेटा। नाउ दिस बिकम cot x, so we write this cot x here and write in bracket the rest part, which is 2 cos 4x and sin x, right? now here we have to apply because answer is in terms of difference, और मेरे पास प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला आपका डिफरेंस प्रोडक्ट को ही प्लस और माइनस में कन्वर्ट करता है, 2 cos 4x into sin x, sorry, formula is, we have to mention that formula, 2 cos a sin b, which is equal to sin a plus b minus sin, minus b। yes beta, this formula we have to apply। तो a मेरे पास 4x है और b मेरे पास x है, तो अप्लाई कर दो, which is cot x in bracket sin of 4 plus 1 is 5, a minus b, 4 minus x is 3, तो फाइनली वी हैव, सॉरी बीच में था माइनस साइन, तो वी हैव cot x इन ब्रैकेट sin 5x minus sin 3x, which is my RHS।
ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। इसीलिए ये Yes, क्वेश्चन sir. इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चा इस स्टेप के बाद इसको सॉल्व करेगा आरएचएस को। और मेरे को, क्योंकि मेरा टारगेट होता है कि मुझे अपनी क्लास में जो भी एग्जाम है उसमें मुझे किसी को भी फुल मार्क्स नहीं देने, और मैं चैलेंज करके चलता हूँ और खुश भी होता हूँ अगर उस केस में बच्चा मेरा फुल मार्क्स ले आता है, तो बिकॉज मेरे लिए खुशी होगी कि मेरी तरफ से गिवन जितने भी चैलेंजेस थे बच्चे ने सारे क्लियर कर दिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो कि टीचर की कोशिश होती है कि किस हर बच्चे के या जो भी अच्छा बच्चा है उसका आधा एक नंबर कट जाए स्कूल के एग्जाम में, और बोर्ड में वो चाहता है कि उसको ऐसे टीचर के पास कॉपी मिले जो छोटी मोटी गलतियों को अवॉइड कर दे, ठीक है। तो मेरी विश यही है। चलो अब देखो 16 क्वेश्चन देखो बेटा। अब कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, टाइम हो गया है, बस 2 मिनट और लूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक ये आपको ट्राई करने बेटा, 21 तक। एंड इन ऑल दीज क्वेश्चन मेजरली रिक्वायर्ड सी एंड डी फॉर्मूला बेटा, 16 से 21 तक। तो आज की डेट में आप 21 क्वेश्चन तक कंप्लीट करोगे बेटा, टिल क्वेश्चन 21। क्लियर है बेटा? बोलो, कर लोगे इतना काम बेटा? Yes, sir. ठीक है, आज की डेट में आप 21 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, रेस्ट में आपके संग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके बेटा, नाउ यू कैन लीव। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।